Today we will discuss about the types of friction. So there are three types of friction. What are these? The first one is the static friction, okay? And the other one is the sliding friction. And the third one is rolling friction. So we are going to discuss about each friction one by one. So सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि what is this static friction, okay? So the maximum frictional force present between two objects when one object just tend to move over the surface of other object. So what does this mean? एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट बस एक मूव करने की पोजीशन में आ जाए. मतलब इट इज जस्ट एक्चुअली वो मूव करना शुरू नहीं हुआ, बट वो मूव करने के लिए जस्ट रेडी हुआ है. ओके, दैट मीन्स इट हैज जस्ट टेंड टू मूव. Try to understand it with the help of an example. Suppose this is a box. And this box is kept over this surface. Okay. Now you have applied certain amount of force to move this box. अब आपने धीरे धीरे फोर्स इंक्रीज किया और इतना इंक्रीज किया कि बस ये बॉक्स अब मूव होने की पोजीशन में आ गया. मूवमेंट अभी शुरू नहीं हुई है, बट हाँ, मूवमेंट बस शुरू होने वाली है. सो जो फ्रिक्शनल फोर्स आपने अप्लाई किया, दैट मीन्स कि द फ्रिक्शनल फोर्स विच यू हैव अप्लाइड टू मेक दिस बॉक्स just so that the movement could be just started. This is known as which friction? Static friction. That means the maximum frictional force present between the two objects. इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट था जिसको आपको ओवरकम करना पड़ा ताकि ये मूवमेंट जस्ट स्टार्ट हो पाए. याद रखिएगा, मूवमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है, बस वो मूवमेंट शुरू होने वाला है. Okay, tend to move over the surface of the other object. This is known as static friction. Now let's try to understand what is the sliding friction. Now the sliding friction is that कि एक बार जब movement शुरू हो गया तो आपको क्या होगा कि continuously एक force apply करना पड़ेगा to sustain that movement. मतलब ताकि वो movement लगातार चलता रहे तो आपको एक force apply करना पड़ेगा. So that is the which friction? Sliding friction. That means to maintain the movement, to maintain the slide of one object over the other object, you have to constantly apply a force, and this force is known as sliding friction. Okay, and rolling friction is same. That means कि if one object rolls over the other object, then the maximum frictional force which comes into play is known as rolling friction. So आप देखेंगे कि जो ये static friction है वो ज्यादा होता है as compared to sliding friction. So this is very important question कि why static friction is more as compared to sliding friction. So इसका एक ये है कि आपने जैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर काफी देर से रखा हुआ है तो उसकी जो इरेगुलरिटीज होंगी वो बहुत अच्छे से एक दूसरे से बाइंड कर देंगी. ओके, फिर आपको क्या होगा कि उन इरेगुलरिटीज को ब्रेक करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. और जब सारी की सारी इरेगुलरिटीज ब्रेक हो जाएंगी तो आपका वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव जस्ट स्टार्ट करेगा मूव होना. अभी मूव होगा नहीं, बट इट विल जस्ट टेंड टू स्टार्ट द मोशन. नाउ एक बार जब इरेगुलरिटीज ब्रेक हो गई तो आपका कौन सा फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले? स्लाइडिंग फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले. नाउ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द दिस फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. बिकॉज क्या है कि एक बार आपने देखा कोई भी चीज का मोशन शुरू करने के लिए इनिशियली हमको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है टू ओवरकम द विच फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Now to overcome the static friction.
Now once the movement has started, now you have to apply less energy to sustain that movement. Okay, why? Because in this case एक बार already जब motion शुरू हो गया है तो जो इरेगुलरिटीज है होंगी उनको इट विल नॉट गेट एनफ टाइम टू बाइंड विथ ईच अदर, बिकॉज जैसे ही बाइंड होगी तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा और आगे मूव हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दैट, as irregularities in case of sliding friction get less time to bind with each other and proper जो binding है वो नहीं हो पाती, इस वजह से क्या है, the sliding friction is less as compared to static friction. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस बॉक्स को मूव करना है तो इनिशियली हो सकता है कि आपको 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़े इस बॉक्स को बस मूव होने की पोजीशन में लाने के लिए. लेकिन एक बार जब मोशन शुरू हो गया तो आपको हो सकता है कि सिर्फ इस मोशन को कंप्लीट सस्टेन करने के लिए सिर्फ 3 न्यूटन फोर्स ही अप्लाई करना पड़े. ओके, बिकॉज इन दिस केस व्हाट हैपन, इन दिस केस स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी 5 न्यूटन while the sliding friction will be 3 newtons. And why the sliding friction is less? Sliding friction is less because when the object is already moving over the other object, then the irregularities will get less time to bind with each other. जैसे ही वो bind होगी तब तक क्या होगा, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे जो है अपनी पोजीशन उसकी और आगे हो जाएगी. तो इस वजह से always sliding friction is less than the static friction. Now children, how we can define sliding and rolling friction? So sliding friction, friction force which resists the motion when one body slides over the other body. मतलब कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो जो फोर्स इस मोशन को रेजिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. रेजिस्ट मतलब कि बाधा उत्पन्न करना. तो फ्रिक्शनल फोर्स एज वी नो इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन. तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है तो जो फोर्स जो है वो जो कंटिन्यूअसली इस मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नाउ द नेक्स्ट वन इज द रोलिंग फ्रिक्शन. व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? फ्रिक्शनल फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन when one body rolls over the other body. That means कि एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उस मोशन को रेजिस्ट करता है उसको नहीं होने देता, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन. एंड यू नो रोलिंग फ्रिक्शन इज लीस्ट. दैट मीन्स कि अगर हम कंपेयर करें स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन के लिए, तो जो सबसे रोलिंग फ्रिक्शन है वो बहुत बहुत कम होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन. इट इज नियर अबाउट 10 times लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. सो दैट्स वाई आपने देखा होगा कि जो हमारे हैवी लगेज होते हैं, सूटकेसेस होते हैं, उसके नीचे व्हील्स फिट किए जाते हैं ताकि आप उसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सकें. इसी तरह जो हैवी मशीनरीज होती हैं उसमें भी हम व्हील नीचे फिट करते हैं ताकि वो आराम से हम उसको मूव कर सकें. एंड परहैप्स दिस इज वाई यू नो इन्वेंशन ऑफ व्हील इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द मैनकाइंड. क्योंकि अगर आप खुद ही इमेजिन करिए कि अगर आप एक कार्ट है उसको स्लाइड करोगे तो आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जबकि अगर आपने उसमें व्हील्स फिट किए हैं तो इट विल बी मच इजियर टू पुल दैट कार्ट.